Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. As you know, recently I have taken the poll from you कि whether to make a video on this topic or not. More than 90% of the students want the video on this topic, means their concepts are not clear of how to solve the questions based on the operators. So based on your request, I have made this video, and for the introduction of all these operators I have already covered. I will provide you the link of that video in my description also. The various types of operators, this you can check in the playlist of class 11. In this video, we will see how to solve the questions based on the operator precedence. And in your sample paper also, which is recently issued by the CBSE, one question is having two parts. 2 mark questions was there in that sample paper. So that means this concept you can say it's important. Before starting that, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like my video and understood the concept, do like this video so that I will get to know that yes, your concepts are clear now. So let's start. How to solve the questions based on the operator's precedence. For this, you just have to remember this, or you just have to know the precedence of the various operators. Let me first recall the precedence of operators. I have made this table. The topmost, this is parenthesis. This is having the highest precedence. और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, that at the end its OR operator, it is having the lowest precedence. After parenthesis, it's exponentiation, then unary, plus and minus, arithmetic operators, multiplication, division, floor division, remainder, addition, subtraction, then your comparison and identity operators, and logical not, and OR operator. You just have to remember the operator precedence. उसके बाद आपके जो questions हैं वो एकदम within seconds you will be able to solve that. So I request you to watch the video till end. I will try to solve maximum questions. सभी questions मैंने इसमें cover किए हैं, even of your sample paper also. Plus हर एक type का question cover किए. Let's start with the first question now. You just have to remember the operator precedence. Just see this at the right side. Operator precedence table is given. This expression is given. 7 into 8 divide by 8, then floor division operator, then 2. अब इसमें मेरे को यहाँ पर इतने operators given है बेटा. Multiply, then division, and then floor division. All these multiply, division and floor division are having the same precedence. If we are having operators with same precedence, then we have to follow the rule of associativity. All the operators are having the left to right associativity except the exponentiation operator. Exponentiation operator is solved from right to left. Let me just show you the difference. Now see, suppose here I am writing 35 divided by 7 divided by 5. So first it will solve 35 divided by 7. That means 7 5s are 35. 5.0. Then 5.0 will be divided by 5. That means 1. If suppose here I am writing this. So that means this is exponentiation operator. The associativity of this operator is from right to left. Only this is the operator only. This is the only operator which is having the right to left associativity. So first it will solve 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3 is 8. So then it will solve 2 raised to the power 8. That means 256. Remaining all the operators are having left to right associativity. Now see this question. First we will solve 7 into 8. That means 56. उसके बाद हम as it is रखेंगे 56 divide 8 floor division 2. Now I have to divide this. 56 divided by 8. Now this is the division operator. It will give you the result in the float form, means in the decimal form. So 8 7s are 56, 7.0.
then floor division and then 2. Now you will say कि ma'am floor division operator will always result in the integer, but this condition is valid only when both the operands are integers. In case if any of the operand is in decimal form or in floating value, so then the result must be in the floating value. Let me show you the execution of this. Suppose here I am writing this floor division operator. Now 4 5s are 20. It will show 5. If I will write this, अब मैंने कोई भी ऑपरेंड किस में ले लिया, पॉइंट में, तो अब ये 5 पॉइंट समथिंग मींस वो 0 ही शो करेगा, चाहे आगे क्वेश्चन उसका कुछ भी आना हो. आफ्टर पॉइंट इट विल शो 0. नाउ सी दिस 7.0 फ्लोर डिवीजन 2, दैट मींस 2 3s are 6. अब एक ऑपरेंड मेरा पॉइंट में है, तो योर आंसर विल बी इन द डेसिमल, दैट मींस it returns 3.0. Now we will solve these questions. This is the question given to you. Length of hello double equals to 25 divided by 5 or 20 divided by 10. Now see this. अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा ब्रैकेट, दैट मीन्स लेंथ ऑफ हेलो. अब हेलो में हम काउंट करेंगे हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 5, HELLO. तो लेंथ ऑफ हेलो इज 5. डबल इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 5 or 20 divided by 10. Now we are having operators equals to divide or is having the least precedence. इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. अब equals to मीन्स जो हमारा रिलेशन ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू एंड डिवीजन, इसमें से हमारे पास जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो किसकी है बेटा, डिवीजन की. सी एट द राइट, यहाँ पर डिवीजन की प्रेसिडेंस है और यहाँ पर हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स की है. तो दैट मीन्स पहले मुझे इसको डिवाइड करना है. 5 डबल इक्वल्स टू, now 25 divided by 5, 5.0 or 20 divided by 10. 5 double equals to 5.0 or now 20 divided by 10, it's 2.0. Now 5 double equals to 5.0. अब मेरे पास 2 ऑपरेटर्स है बेटा, डबल इक्वल्स टू एंड और किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है बेटा, डबल इक्वल्स टू की. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस. 5 double equals to 5.0, both are equal, that means true. और 2.0. ठीक है. अब देखो इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब ट्रू और अगर मेरे पास और ऑपरेटर है लॉजिकल और इसमें मेरे पास वैल्यूज हैं, मींस इंस्टेड ऑफ कंडीशन अगर मैं कंडीशन लिख दूं 4 लेस देन 5 और 6 ग्रेटर देन 4, तो ये बेस्ड ऑन द कंडीशन सॉल्व करेगा. और ऑपरेटर में क्या होता है, इफ ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स then only it will return the result as false. If my any of the value is true, so then it will return the result as true. A 4 less than 5 condition true, 6 greater than 4. This condition is also true. So true or true, true. But in case of value, suppose here I am writing 3 or 5. तो ये आपका आंसर true false में नहीं रिटर्न करेगा. It will return the result in the form of a value. अब जो और ऑपरेटर है उसका रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है. अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर कुछ भी है, तो दैट विल बी कंसीडर एज ट्रू. अगर वो ट्रू हो गई तो सेकंड तो मेरा वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, इट डजंट मैटर. तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, लेट मी जस्ट राइट इट हियर 3 और लेट्स सपोज 5. तो आंसर विल बी द फर्स्ट वैल्यू. अगर हम यहाँ पर जीरो भी लिख देंगे तो इट डजंट मैटर. एंड सपोज हियर आई एम राइटिंग 0 और 5. अब अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो है और के केस में मींस फॉल्स है, तो माय रिजल्ट विल डिपेंड अपॉन द सेकंड वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू इज नॉन जीरो, तो देन इट विल रिटर्न 5. सेम इन द केस ऑफ द एंड ऑपरेटर. अब एंड ऑपरेटर में मेरा रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा बेटा, सेकंड वैल्यू पे, अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो है. सपोज आई एम राइटिंग 7 एंड 8. अब इसने ये तो चेक कर लिया दिस इज ट्रू, दिस इज नॉन जीरो वैल्यू. अब मेरा रिजल्ट तो सेकंड वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना. इफ इट इज नॉन जीरो तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 8. अगर मेरी सेकंड वैल्यू बेटा जीरो होगी तो देन इट विल रिटर्न 0. और अगर मैं अपने फर्स्ट वैल्यू को ही जीरो ले लूं, मीन्स फर्स्ट वैल्यू ही फॉल्स हो गई, तो सेकंड वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मेरा रिजल्ट क्या होगा बेटा, फॉल्स. और फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, 0.
अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, और ऑपरेटर है, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, ट्रू, तो सेकंड तो चाहे कुछ भी हो, मेरा रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ट्रू। अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं पाइथन में, इट्स ट्रू। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 into 3 plus 4 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर रेज़ टू पावर 2 फ्लोर डिवीजन 5 minus 8। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। 4 रेज़ टू द पावर 2 दैट मीन्स 16। दिस क्वेश्चन, ये जो आपका जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया उसमें भी आया हुआ सेम क्वेश्चन। 6 into 3 plus 4 raised to the power 2 16। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 5 minus 8। नाउ वी आर हैविंग दीज ऑपरेटर्स। अब उसके बाद प्रेसिडेंस किसकी है बेटा, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और फ्लोर डिवीजन। प्लस और माइनस की कम है, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस मल्टीप्लाई और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, और इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोथ दीज ऑपरेटर्स आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। तो 6 3 is 18 प्लस 16 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 5 minus 8। नाउ 18 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर माइनस 5, दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, 5 3 is 15 3 minus 8। नाउ 18 plus 3 21 minus 8, and 21 minus 8 is 13। So the correct answer of this question is 13। Let me just execute this also. Change the minus sign. So the correct answer is 13. We are also getting 13. Now next question. 10 is greater than 5 and 7 is greater than 12 or not 18 is greater than 3. ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई वाले सैंपल पेपर में। नाउ वी आर हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, दीज आर हैविंग द लिस्ट प्रेसिडेंस। उससे पहले हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द रिलेशनल ऑपरेटर्स। 10 is greater than 5, कंडीशन ट्रू, एंड इसी में ही सॉल्व कर देते हैं, या आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। 7 greater than 12 और नॉट 18 greater than 3। नाउ ट्रू and 7 greater than 12, this condition is false, or not 18 greater than 3। true and false as it is रहेगा, or not 18 greater than 3, this condition is also true। अब आपके पास जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब नॉट एंड और, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है इन तीनों में से, नॉट की, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स, तो इक्वल्स टू ट्रू एंड फॉल्स, और नॉट ऑफ ट्रू विल बी फॉल्स। नाउ वी आर हैविंग एंड और एंड और में से किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है बेटा, एंड ऑपरेटर की। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स और फॉल्स, एंड फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो, वी आर ऑल्सो गेटिंग फॉल्स। यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 3 less than 5 और 50 divided by 5 minus 3 plus 2। Now in this expression parentheses are also given to you and which is having the highest precedence। So हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स को। Let me just write it here, 3 less than 5 और 50 divide 5 minus, first we will solve the inner bracket, that is 3 plus 2। So answer is 3 plus 2 is 5, so 5 minus 5, so that will be 0। 3 less than 5 और 50 divide by 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद बेटा वी आर हैविंग लेस देन और डिवाइड, दीज 3 ऑपरेटर्स। इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है बेटा,
डिवीजन की। 3 लेस देन 5 इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। और 50 डिवाइड बाय 0, कैन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 50? नो, तो इट विल जनरेट द डिवीजन बाय 0 एरर। ठीक है, अब 3 लेस देन 5, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, और डिवीजन बाय 0 एरर। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है कि अगर और ऑपरेटर है और फर्स्ट वाला ऑपरेंड मेरा ट्रू है तो इट डजंट मैटर कि मेरा सेकंड ऑपरेंड क्या होगा, तो माय रिजल्ट विल बी ट्रू। लेट्स एग्जीक्यूट दिस आल्सो। वी आर गेटिंग ट्रू। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, जहां पर मींस मेरा डिवीजन बाय 0 एरर जनरेट हो रहा था, इसको मैंने पहले लिख दिया और मैं लिख दिया 3 लेस देन 5। अब यहीं पर मेरा क्या आ जाएगा? 0 डिवीजन एरर। अब जो और ऑपरेटर है, अब ये मेरा एरर क्या जनरेट करेगा? 0 डिवीजन एरर, क्योंकि इतने पोर्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा? 50 डिवाइड बाय 5 माइनस 5, 50 डिवाइड बाय 0। तो अब अगर फर्स्ट ऑपरेंड में ही एक्सेप्शन जनरेट हो गई तो वो सेकंड वाले को चेक नहीं करेगा। I have explained you in both the cases. Now next question, ABC double equals to ABC and not 2 double equals to 3 और 3 double equals to 4. अब सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है बेटा? ब्रैकेट्स। So here I am writing ABC double equals to ABC and not 2 double equals to 3 और 3 double equals to 4. तो पहले हम इक्वल्स टू वाला सॉल्व करेंगे। 2 डबल इक्वल्स टू 3, दिस इज फॉल्स, और 3 डबल इक्वल्स टू 4, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे ABC डबल इक्वल्स टू ABC एंड नॉट F और F। यहाँ पर फॉल्स आएगा बेटा, बिकॉज ऑफ द स्पेस आई हैव जस्ट रिटन F। तो F और F, फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स। अब मेरे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ABC डबल इक्वल्स टू ABC, दोनों इक्वल नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स एंड नॉट फॉल्स। अब एंड और नॉट दोनों आ गए। अब प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है बेटा? नॉट की। दैट मीन्स आई हैव टू सॉल्व दिस। तो फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स. So this is our final answer. Let me execute this also in the Python shell. False, we are also getting false. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास ब्रैकेट है इसके अंदर हमारे पास इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, तो इन दोनों में प्रेसिडेंस यहाँ पर इक्वल्स टू है, यहाँ पर और है। तो पहले इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर वाला सॉल्व करेंगे, फॉल्स और फॉल्स, फिर इन दोनों का आंसर हम और ऑपरेटर के थ्रू करेंगे, फिर यहाँ से हम इक्वल्स टू को सॉल्व करेंगे, फिर नॉट एंड फिर एंड। यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एंड नॉट 5 लेस देन 10। अब पहले किसको सॉल्व करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स। 5 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू एंड नॉट 5 लेस देन 10। 5 लेस देन 10, दिस इज ऑल्सो ट्रू. So true and not true. Not true will be false and true and false will be false. So the correct answer is false. And के केस में आपका true सिर्फ तभी होगा if all my operands, all my conditions are true. Now next question, this is the last one. -4 into -2 exponentiation operator 3 प्लस, अब सबसे पहले क्या सॉल्व होंगे बेटा? ये ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर क्या लेंथ फंक्शन, ये हमने एज इट इज लिख दिया, str फंक्शन। अब जो मेरा str 6 है, दिस 6 इज माय इंटीजर वैल्यू। अब जब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगी, इट विल बिकम लाइक दिस। अब मुझे इसकी क्या करनी है? लेंथ काउंट करनी है, लेंथ ऑफ 6। इसमें कितने कैरेक्टर्स है बेटा स्ट्रिंग में? 1, सो लेंथ विल बी 1। -4 into -2 raised to the power 3 plus 1. Now see here beta, -4 into -2 exponentiation operator 3. अब ब्रैकेट्स नहीं है, अब प्रेसिडेंस किसकी है बेटा सबसे ज्यादा?
exponentiation. That means 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3 will be 8. So minus 4 into minus 8 plus 1. अब ये सॉल्व हुआ बेटा, माइनस 4 हमने एज इट इज लिख दिया इनटू माइनस, अब हमने इसको सॉल्व किया बेटा, माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 दैट मीन्स माइनस 8 प्लस 1. अब मेरे पास क्या है बेटा, मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लाई की. अब माइनस 4 इंटू माइनस 8, ठीक है, तो माइनस 4 इंटू माइनस 8 32 प्लस 1, तो दैट मीन्स 33. लेट्स एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो. It's 33 and we are also getting the answer as 33. So I try to complete the questions of all concept. I hope it's clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.